Welcome students, welcome to computer class. I am your teacher Nitish Kumar. So this is the video for class 8. That's your book. And today we read chapter number 6. I know we already have one more video for chapter number 6. That is the part 1 video. In chapter number 6, Python revision, there is the video for the part 2. Okay, I always told you, remember the logo. It will help you when you want to open the program or anything which is related with this one. It will always help you. Okay, now the Python revision. As you all know, we already discussed about the introduction of this one, but one more time I am discussing. Python is a programming language. It is a multifunctional programming language. Multifunctional because it's used for so many purposes. With the help of a single programming language, we can create the apps, we can create the web pages, we can create the softwares, we can create the there are so many things which we use for a single language. It available free on internet. Okay, it's freely available on internet, no charges. Some features of Python: it have the platform independent software. Platform independent है, means किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा, चाहे OS हो, Mac हो और Windows पे तो चलना ही चलना है. Free for everyone. It's free for everyone. हर किसी के लिए फ्री है. Anyone can download on the internet. It's very easy और काफ़ी लाइट भी है. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हो, काफ़ी छोटा सॉफ्टवेयर है, आसानी से इंस्टॉल हो जाता है. और वन मोर थिंग, इट डिज नॉट रिक्वायर्ड एनी वेरी वास्ट सर्वर. काफ़ी इजी, किसी भी सर्वर पर चलने लायक है. केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बट इट कैन केस सेंसिटिव है. इन आवर प्रीवियस क्लास आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द केस सेंसिटिवनेस. सो केस सेंसिटिव मीन्स when we use the print, then it's a rule to write the print with the small p. We cannot use the capital P with the print. Okay, or for writing any type of function, it's written in a small. We cannot use the capital. For example, I am using the input and I can't write the input. I is not be in a capital. I must be in a small letter. So that means it's a case sensitive. Welcome to Python. So before starting this video, actually I left one concept in our previous video. So first I have to complete that one. So the name is input function. Okay, before starting that thing, we have to complete the portion which I left in previous video. The name is input function. Okay, the name is input function. Okay, so for this one I am starting a Python window. Python खोल लेंगे और हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल लेना है. सो वी हैव टू गो इन न्यू ऑप्शन एंड देयर इज अ न्यू फाइल ऑप्शन. आई एम ओपन द फाइल. नाउ फॉर इनपुट you have to take some input, for example some variables. In previous class we also talk about the variables. A variable name should be different. We cannot take the two variables with the same name. A variable must be start with the alphabet. Always start with the alphabet. Okay, so there is so many rules we have to use for that thing. So now we have to start this one. I am taking a variable and with the input function. Input a equal to input, and in double quotes enter your first name or enter the number. Enter the number. For example, I am creating a software, जैसे कि
मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास जो भी कुछ होगा, ठीक है, जैसे कि मैं एक प्रिंट ऑप्शन यूज कर लेता हूँ पहले, जिसके अंदर डबल कोट्स में लिखेगा गिव 2 नंबर्स फॉर ऐड, गिव 2 नंबर्स फॉर ऐड। 2 नंबर देना है आपको। तो पहला नंबर है इंटर द नंबर, तो इंटर द फर्स्ट नंबर कर देते हैं, इंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हो गया, ओके। एंड देन देने के लिए भी एक जगह बना देते हैं, इक्वल टू दे देते हैं। नाउ आई एम मेकिंग अ बी टाइप वेरिएबल, मैं एक बी टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें लिखा होगा इंटर द सेकेंड नंबर, इंटर द सेकेंड नंबर, ओके। There is a format option, there must be a, so where we are writing 2 commands and then taking the third variable is c equal to a plus b, okay, and at the last time I'm taking a print option, print in bracket total equals to, give a comma, then c प्रिंट करा देंगे। चलिए इसको पहले सेव कर देते हैं with the name of t and then press F5। तो you see give 2 numbers for add, मैं एक नंबर देता हूँ, then press enter second number, now you see we have the total of these numbers। तो इस तरह से हमको उस नंबर का टोटल मिल जाता है, ओके। तो ये था इनपुट लेने का, ओके। नाउ वी सी और वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। टुडे वी रीड अबाउट द ऑपरेटर्स, टुडे वी रीड अबाउट operators. A operator used for different operation. We use the different operator with different operand for a meaningful result. For example, or at that place, operator क्या होता है, जो चीज़ों को ऑपरेट करने में हमें हेल्प करता है। डिफरेंट ऑपरेटेंडेंट के साथ, ठीक है, ऑपरेंड्स के साथ हम लोग इसका यूज करेंगे। ऑपरेंड्स मीन्स नंबर, टेक्स्ट, एनीथिंग, ओके। एंड ऑपरेटर मीन्स द थिंग विच एड द बोथ ऑफ द ऑपरेटेंड, जो 2 ऑपरेटेंड या उससे ज़्यादा ऑपरेटेंड को जोड़ने के काम करेगा या उनके बीच में रिलेशन दिखाएगा, उसको हम लोग ऑपरेटर कहेंगे, ओके। सो दिस इज डिफरेंट ऑपरेटर्स हियर। We have to read about the arithmetic operator, string operator, assignment operator, relational operator and logical operator. So we read one by one. Arithmetic operator. In arithmetic operator we have plus, minus, multiplication, division, percentage, asterisk, asterisk. It must be for the power value. Sometime for the power value we use this one, and also the floor. This is known as the floor value, okay। How many times we, मतलब कि क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 15 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलता है 7। उसके बाद क्या होता है पॉइंट, तो हमको पॉइंट के पहले वाले वैल्यू को अगर हमको कैलकुलेट करना है, देन वी यूज दिस ऑपरेटर, ओके। Okay, so we have to move forward and see how to arithmetic operator works, okay। Then we read about the string operator. In a string operator you also can add the numbers, okay।
We can also add the ABC at here. Okay. चलिए तो चल के देखते हैं हाउ टू अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क्स। इसी जगह पे करते हैं हम लोग एक अरिथमेटिक ऑपरेटर वाला प्रोग्राम यूज करेंगे अभी, जिसमें हम लोग सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करेंगे वन बाय वन। तो इसके लिए हम लोग कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दो इंटीजर टाइप का वैल्यू लीजिए और उसी के साथ सारा ऑपरेशंस किया जाएगा। तो चलिए ले लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ही हम कुछ नंबर ले लेते हैं, इक्वल टू 47 एंड b इक्वल टू 12। एनी वन नंबर यू कैन चूज, देन यू कैन टेक फ्रॉम देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई भी नंबर ले लिया है हमने। नाउ मेक अ सी टाइप वेरिएबल। हम एक सी टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम लोग a प्लस बी करेंगे। ओके। एक डी टाइप का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लोग a माइनस बी करेंगे। a माइनस बी करेंगे। ई टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, इसमें a डिवाइड a मल्टीप्लाइड भी करेंगे। f नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। उसी तरह से ये कंटिन्यू चलता जाएगा। h नाम का वेरिएबल है जो a एस्ट्रिक भी करेगा और i नाम का वेरिएबल है जो a स्लैश भी करेगा। ठीक है, तो हमने वेरिएबल ले लिए हैं। अब हमको वैल्यू प्रिंट करके भी दिखाना है, तो प्रिंट ऑपरेशन का यूज करेंगे। प्रिंट कमांड का, प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं हम लोग। प्रिंट लिख दिए हैं। अब प्रिंट के अंदर हमको वैल्यू देना है। डबल कोट्स के अंदर वैल्यू ऑफ टोटल दिखाना है एक में, तो यहाँ हम लोग दे देंगे सी। किसको दिखा रहे हैं हम लोग, कॉमा देके देना होगा सी को। इसको कॉपी कर लेते हैं। एक में हमने टोटल दिखाया, दूसरे में हम लोग डिफरेंस दिखाएंगे। दूसरे में हमने डिफरेंस दिखाया है। तीसरे में हम लोग फिर से सम ही उसमें डिवाइड वैल्यू है तो हम यहाँ मल्टीप्लाइड वैल्यू दिखाएंगे। हमने मल्टीप्लाइड वैल्यू दिखाया है, फिर डिवाइड वैल्यू है, और इसको भी चेंज करते जाना है आपको सी के जगह पर। फिर यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा। आप 15 मिनट कुछ भी लिख सकते हैं मैसेज में, आप अपना जो चाहें लिख दीजिएगा। जी के बाद एच है, देन एच दिखाते हैं, सॉरी एच स्मॉल में है तो स्मॉल और कैपिटल का भी ध्यान देना। अगर आप ऊपर में स्मॉल रखे हैं देन यू हैव टू गिव द स्मॉल, ओके, यू कांट गिव द कैपिटल। इट्स अ पावर। Okay, at last we have the division value.
वी हैव आई। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम तैयार। वी हैव टू सिंपली क्लिक और सेव बटन, क्योंकि वी ऑलरेडी सेव इट इन अ टी, हमने पहले इसको टी नाम से जो सेव किया था उसी के अंदर लिख दिया है। एंड देन सिंपली क्लिक द F5 बटन फॉर यू। नाउ यू सी वी हैव टोटल, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू, ओके, division value. Now you see the division value is 3.75 and there we have 3 only, okay, और here we say power for this one, उसका पावर ये आया है। और उसके बाद डिवीजन के बाद क्या था, परसेंटेज, 12 इज मस्ट बी, क्या नंबर लिए थे हम लोग 12, तो 12 उसका जो भी परसेंट के हिसाब से आया, ओके। तो ये था उसका वैल्यू जो हमने निकाला है अभी, ओके। सो दीज आर नोन एज arithmetic operators. Now we move to string operators, means the numbers. In string operators we using the alphabets for doing the same work. चलिए इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो चीजें काम की नहीं उसी को हम डिलीट कर देते हैं बस। ओके, ए और बी को कुछ वैल्यू देना है, तो इस बार हम लोग इनपुट फंक्शन का चलिए इसके साथ यूज करके देखते हैं काम बनता है कि नहीं। और ए इक्वल टू इनपुट वैल्यू हम लोग दे रहे हैं, वी हैव टू गिव द स्पेस एंड आई मस्ट बी इन स्मॉल, ओके। कैपिटल देने पे फिर वो काम नहीं करेगा। नाउ गिव द message, enter the first string, okay, enter the first string, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग को एक वैल्यू ले लेना है, ठीक है। एक इक्वल टू भी दे देते हैं ताकि हमको पता चले कि आखिर में हमको वैल्यू देना कहाँ है। सो आई एम टेकिंग इक्वल टू ऑल्सो। यहाँ पे बस सेकेंड स्ट्रिंग कर देते हैं हम लोग, सेकेंड स्ट्रिंग कर दिया हमने। और यहाँ पे हमने ए और बी ले लिया है, चलिए इनका प्रिंट करके दिखाते हैं हम लोग। सो वी हैव टू प्रिंट इट 2 टाइम्स। एक बार हम लोग सिर्फ नॉर्मल सी को दिखा रहे हैं, दूसरी बार हम लोग सी जो हमारा है उसको हम लोग मल्टीप्लाइड करके दिखा रहे हैं 3 के साथ, ओके। चलिए बुक से सेम वाला प्रोग्राम ही कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं यहाँ डिफरेंस को हटा के मल्टी कर दूँ ताकि पता चले काम क्या हुआ था, ओके। नाउ आई एम क्लिकिंग सेव बटन, कंट्रोल एस एंड देन F5। इंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग, कोई भी फर्स्ट स्ट्रिंग डालने को कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लास, सेकेंड स्ट्रिंग में मैं 8 लिखता हूं, देखते हैं क्या मिलता है। क्लास 8 क्लास 8 क्लास 8 3 टाइम्स हुआ ना। आपको अगर कोई स्पेस देना है तो मैं इसके अंदर एक स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लगा तो हम एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं और फिर से एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। फर्स्ट यू हैव टू क्लोज दिस वन and give a save again, सेव करना जरूरी है हर बार, and then press F5। फर्स्ट स्ट्रिंग इस टाइम नीतीश, मैंने नीतीश दिया है। सेकंड में मैं कुमार दे रहा हूँ, now you see नीतीश कुमार, but there is no gap between these word, okay। so इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू का यूज करेंगे।
Now assignment operator is just a same of when you taking a variable, ठीक है, it's already it assignment operator, it is used to assign the value in a variable. Okay, किसी भी वेरिएबल में अगर हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं देन वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर. फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 10, ये तो हम लोग हर जगह कर रहे हैं, सो आई डोंट थिंक इट्स मैंडेटरी फॉर यू. तो ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको दूँ ही. तो आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में. ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, equal to and not equal to. These are our relational operators. Okay, relational operator, it used for showing the relationship between two words. Okay, for example 10 is greater than 20, so it's a true or false, it's false. तो इस तरह के कुछ वैल्यू को दिखाने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे. एंड वी ऑल्सो यूज लॉजिकल ऑपरेटर. ओके, लॉजिकल ऑपरेटर नॉट, एंड, और. तो चलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं. First we start with the relational operator. Relational operator, I am taking two variables, x equal to any number, okay, and y equal to any number, and simply check it. Simply check कर रहे हैं हम लोग z में डाल के इसको. z equal to x is greater than y. ओके, और अगर ये सही है देन प्रिंट कर दो. प्रिंट कर दो यस, कॉमा x, फिर से कॉमा, एंड देन इज ग्रेटर, x बड़ा है. तो चलिए इसको सिंपली सेव कर रहे हैं, उसी फाइल में बना रहे हैं तो बार बार सेव करना ही सिर्फ जरूरी है. कंट्रोल एस दबाना. देखते हैं हमारा काम बना या नहीं. ओके, देयर इज सम एरर, वहां पे कुछ एरर मैसेज आया है. नेम x इज नॉट डिफाइंड, x डिफाइन नहीं किया गया. तो चलिए देखते हैं क्या नहीं डिफाइन किया गया. एक्चुअली आई एम यूजिंग हियर द स्मॉल x और व्हाट वी हैव टू राइटिंग कैपिटल X. तो इस तरह के सिचुएशन भी आएंगे. तो हम यहाँ पे स्मॉल x कर देते हैं, फिर से सेव कर रहे हैं, F5 दबा रहे हैं, एंड यू सी यस 96 इज ग्रेटर. तो आया ना. तो इस तरह से हम लोग सारे फंक्शंस का यूज कर सकते हैं. किस फंक्शन का क्या यूज होता है एक शॉर्टली डिस्क्रिप्शन में ही दे देता हूं यहीं पे. ग्रेटर देन, लेस देन तो समझ गए, इक्वल टू भी जान रहे हैं. अब लेस देन इक्वल टू क्या है. लेस देन इक्वल टू व्हेन वी कंपेयर 10 to 10. अगर हम 10 और 10 को कंपेयर कर रहे हैं एंड देन हम लेस देन इक्वल टू लगाते हैं तो वो सही हो जाता है. लेकिन अगर हम 10 to 10 को कंपेयर कर रहे हैं और हम लेस देन या ग्रेटर देन का यूज कर रहे हैं तो वो फॉल्स कहलाएगा. ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू भी सेम चीज है. जब तक मान लीजिए हम इधर 10 रखे हैं, इधर 1 रखे हैं, ये चलता जाएगा जब तक कि 10 ना आ जाए. 10 आने के बाद भी ये ट्रू कहलाएगा. जैसे ही 11 आएगा दूसरी ओर, वो फॉल्स कहला जाएगा. ओके, इक्वल टू यहाँ पर सेम सिचुएशन होनी चाहिए. ओके, दोनों ही इक्वल होने चाहिए. नॉट इक्वल टू, ये भी एक तरह से कंडीशन चेक करने के कभी कभी काम आता है हमारे. फॉर एग्जांपल वहाँ पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए जब तक वो अनइक्वल है. फॉर एग्जांपल 20 and 10, और हमने काउंटर लूप शुरू कर दिया है तो 10 11 हुआ, तब तक ये 12 हुआ. ठीक है, जैसे ही 20 आएगा तो वो क्या होगा कि नॉट इक्वल टू था जब तक चल रहा था. जैसे ही 20 आया वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि वो फॉल्स वहां पे बताने लगेगा कि चलो ये फॉल्स है. लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं तो एक छोटा सा लॉजिकल ऑपरेटर का प्रोग्राम भी हम लोग देख लेते हैं. तो लॉजिकल ऑपरेटर में जब हम लोग एंड का यूज करेंगे तो ध्यान देने की बात होगी, एंड में दोनों तरफ राइट होना चाहिए. ठीक है, दोनों तरफ राइट होना चाहिए, मतलब कि दोनों तरफ सेम वैल्यू होना चाहिए. जैसे मैं यहाँ पे भी ट्रू लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी ट्रू लिख रहा हूँ.
ओके। और नीचे वैल्यू जो हम दिखा रहे हैं सी जेड में, वहाँ पे ए एंड बी हम लिखेंगे यहाँ पर। ओके, ध्यान देना है ट्रू का टी कैपिटल होगा, याद रखना है। ट्रू और फॉल्स जब भी हम दें तो ट्रू का टी कैपिटल होगा और फॉल्स का एफ कैपिटल होगा। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, ये आपको रिमेंबर रखना होगा। ओके, और इसके बाद हम लोग इसमें प्रिंट करके दिखा रहे हैं जेड को, जेड को हम प्रिंट करा रहे हैं इज ट्रू, जेड इज ट्रू। अगर ये काम करेगा तभी ये मैसेज आएगा। कंट्रोल एस। नाउ यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आया है जहां पे बोल रहा है नेम ए इज नॉट डिफाइंड, ए नहीं बना हुआ है। मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिया था और यहाँ पे ए बी डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह का भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको सुधारने के लिए फिर से इसको बंद करेंगे और यहाँ पे जाकर इसको एक्स वाई कर देंगे। एक और प्रॉब्लम आने वाला है, यहाँ पे हमने जानबूझ के लिखा है, यहाँ पे हमने स्मॉल जेड यूज किया है और नीचे कैपिटल जेड यूज किया था, तो उसको भी सुधार ही देते हैं। मैंने जेड सुधार दिया है, सेव किए हैं एफ आई दोबारा, ऐसे यस ट्रू इज ट्रू, यानी कि वैल्यू सही है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। एंड में क्या होता है, दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए, और में दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको भी करके ही दिखा देते हैं, ना क्या सोचना। मैंने फॉल्स दिया है और मैं यहाँ पे और कर देता हूँ, बस मैं यहाँ पे और कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने सेव किया, यस ट्रू इज ट्रू, देखा दूसरा भी ट्रू इन ट्रू दिखा दिया। वही इसके जगह पर मैं एंड लिख देता, एंड लिख दूंगा और इसको फिर से सेव करके मैं एफ आई दबा रहा हूं। देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया, यस फॉल्स इज ट्रू, ठीक है, यानी कि वो फॉल्स है। तो इस तरह से हम लोग बाकी ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। चलिए लास्ट बचा ही है तो उसको भी यूज ही कर लेते हैं। नॉट में क्या है कि दोनों ही फॉल्स होना चाहिए, ओके। नॉट में क्या है, दोनों ही फॉल्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक ट्रू और फॉल्स है, तो देखते हैं क्या वैल्यू दिखाता है। यहां से इस वैल्यू को थोड़ा सा हटा दूं मैं, सिंपली गिव अस जेड, सेव किए हैं, एफ आई दबा रहे हैं, इनवैलिड सिंटैक्स, अच्छा वाई, स्मॉल आई वाई, यू हैव टू गिव द स्मॉल वाई। चलिए फिर से सेव कर रहा हूं मैं, इनवैलिड सिंटैक्स, लगता ज़्यादा हो गया क्या, एनओटी, अच्छा एक ही वैल्यू यूज करना है, ठीक है। एक्स नॉट वाई, okay, so that is the way how can we use this one. हाँ हो गया, देखिए यस फॉल्स दिखा रहा है। सो दैट इज द वे हाउ कैन वी यूज ऑल दिस वन। तो आज हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स भी खत्म कर लिए, सारे ऑपरेटर्स खत्म हो चुके हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज द कमेंट इन पाइथन, कमेंट्स इन पाइथन and control structure. These two things we have to talking about in second video, last video for this chapter. So that's why this chapter have the 3 videos. So thank you for